Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the benzene, structure of benzene and the properties of benzene. So let's we start. First of all, let's we discuss about properties of benzene. It is immiscible in water because it is a non-polar solvent. So it is a non-polar organic solvent. So that's why it is immiscible in water. It is a colorless liquid and has an aromatic odor. Aromatic odor because of the structure of that, because benzene is having an aromatic ring, so that's why this aromaticity is because of this aromatic ring which is present in the benzene structure. And benzene has a moderate boiling point. You must have to cram this thing because it might appear in the MCQs part. And it has a melting point 5.48 degrees Celsius. Benzene shows resonance. What is resonance we are going to study in the further in the future lectures. And it undergo under electrophilic substitution reaction, and it is highly inflammable. Highly inflammable means it can catch fire easily and burns with a sooty flame. Sooty flames like कि आप लोगों ने जब भी इसको बंद करना है तो ये ब्लैक कलर के फ्लेम्स जो होंगे उसके साथ, और प्लस इसके एक बहुत सिग्निफिकेंट ओडोर होगी आपके पास जो जिससे ये बर्न होगा. ठीक है. Okay, so on the next slide we have a molecular formula of benzene. It is C6H6 and it is simple aromatic hydrocarbon, as we all know. Then we have it is a highly unsaturated. Highly unsaturated, as we know, what is the meaning of highly unsaturated? The double presence of double and triple bonds. Say double and triple bonds. So highly unsaturated hydrocarbon. It is a 6-membered ring compound with alternative single and double bonds between adjacent carbon atom, as we all know कि यही इसका formula होता है. And chemically unreactive compared to alkenes. It is unreactive because the structure is quite stable, that's why. And in 1865 Kekulé proposed the structure of benzene, and this is the structure of benzene which was proposed by Kekulé. Now this is the bond lengths and bond angles of benzene structure. Again आपको ये याद करने हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये जो आपके पास आ रही है ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, यहाँ पर जो आपके पास ये बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं ये कितने उसके होते हैं, ये लेंस कितने आपके पास पीएम की हैं. तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है ये एमसीक्यूज पार्ट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ये दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. नाउ कम्स structure of benzene, and this is the important part. 6-membered ring compound with alternative single and double bond between adjacent carbon atom. 6 carbon ring with a hydrogen bonded to each carbon. It is a planar. Now this is the structure of benzene ring. It is a good idea to use representation. Now look at this structure. The first structure contain the main thing. These are the hydrogens representation. You can represent structure like this. In that way you can write in all these three manners. It's up to you. Now what's the difference between all these three structures? Just it is the difference lies in the position of double bond. Like look at here, the double bond are present here. In that case double bond is shifted into the next on the different side where it was not present, and now it is just it is showing in a circular motion. It is simply showing, this structure is simply showing okay, the double bond are not fixed, they are continuously keep on moving, that's why they appear to be like this. Fine. And you can write benzene structure like this. Like we have so many different representation. It's up to us by what means we want to write that structure. Fine. But normally हम लोग इस तरह से structure draw करते हैं on a higher level, but in inter level आप लोग अगर bonds के साथ just like this thing, if you want to draw the structure like this, and if you want to represent the benzene structure like this, so it's up to you, you can do this also. Now aromaticity in benzene, why it is so? Because there comes a few of the points that it is a planar molecule containing a ring of 6 carbon atom. Again it is repeated the previous point which we have discussed. The 6 carbon atom form a perfectly regular hexagon. And what is the meaning of hexagon? The ring structure which is having a 6 corners, because as we know benzene is forming 6 corner ring. All the carbon bonds have exactly the same length, because obviously they all are C6H6 and they all are bonded in the same way, that's why they have a same length, where somewhere between single and double bond obviously. And the position of double bond is also not fixed, so we can't say कि ये double bond पे इतना है, तो क्योंकि we know very well that pi bond or the double bond is continuously moving. So this is so there are delocalized electron above and below the plane of the ring. This point
I'm going to explain that what is the meaning of delocalized electron in the structure when I'm going to explain the structure part. So delocalized electrons means that those electrons which doesn't have a fixed fixed position of electrons and below the plane of the ring. ये अभी आपको मैं बताती हूँ आगे. The presence of delocalized electron make benzene particularly stable. Pi bond होते हैं, pi electrons होते हैं, actually they are responsible for delocalization, and this extra pi electrons which they are making benzene particularly stable. Benzene resist addition reaction. Why it is so? It doesn't mean that benzene doesn't undergo addition reaction. They do gives आपको देते हैं addition reactions, but in a perfectly conditions होती हैं जिसके ऊपर देते हैं, but normally they don't give. So they resist addition reactions because those reaction would involve breaking the delocalization, and as we have discussed here that the delocalization is quite stable. But हम लोग आगे addition reaction of benzene भी पढ़ने वाले हैं, so don't get confused कि ये कहाँ से आ गए आगे future में. Benzene is represented by this symbol where the circle represent the delocalized. Benzene is represented with the circle, this one. This is the delocalized electron, and each corner of the hexagon has carbon atom with this carbon. Each corners, all these hexagons, like I'm trying to make the structure in a proper manner, but it is a hexagon. Consider it as a hexagon and has a carbon atom with hydrogen attached. And now the drawback of Kekule structure of benzene, as we have discussed, benzene का Kekule structure के there were few drawbacks. Benzene contain 3 double bonds. The chemical properties of benzene should resemble those of alkenes, although they do, but not all of the properties of benzene match with the alkene part, but actually it is not. Benzene is slightly highly stable, and it is highly stable, that's why it doesn't undergo addition reactions, but when it comes to alkenes, so they easily gives you addition products. It form a substitution compounds easily. The resistance of double bond, and obviously अगर ये addition reaction नहीं देते तो ये क्या देते हैं? They normally like alkanes आपको substitution देते हैं, तो they gives substitution. ठीक है. उसके बाद the resistance of double bond in benzene for addition reaction, and benzene has carbon bond length, जो कि हम लोगों ने देखनी है. Now comes molecular orbital treatment. It is also known as MOT. नॉर्मली हम लोग इसको MOT भी लिखते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट भी लिखते हैं, और इस तरह से भी इसको बताते हैं. नाउ ये होगा कैसे? इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. द इथीन के अंदर जब हम बात करते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 इन केस ऑफ ethene. Fine. Similarly, when it comes to benzene, it is also sp2 hybridization. It is also the same part. And when we are saying about sp2 hybridization, so it means that we will be having 3 sp2 hybridized orbital like this. So each carbon in benzene ring, as we know that how many carbons we have in benzene ring, we have 6 carbons. So each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized. It means that each carbon will be having how many hybridized orbital? Each carbon is sp2 hybridized. Each carbon is having 3 sp2 hybridized orbital. तो 6 के साथ हैं, तो total how many hybridized orbital carbon will be having? 18, obviously, because 6 carbon atoms हैं और हर carbon sp2 hybridized है. So these 18 sp2 hybridized orbital are going to be responsible for the MOT structure or the orbital structure. Now how we are going to draw this structure? Don't forget that sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. अब देखिए कि मैं स्ट्रक्चर बना कैसे रही हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस स्ट्रक्चर को आपको, जो ये स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, मैं इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ. लेट वी ट्राई इट हेयर. दिस इज़ 1 2 3 1 2 3. वॉट इज़ दिस? sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर. ठीक है. सो इसको आपने यूँ और यूँ बनाना है. ठीक है. दिस इज़ द 1 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. नाउ कम द सेकेंड पार्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये किस तरह से अरेंज हुआ है? दिस इज़ 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3. और उसके साथ अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा. 1, सेकेंड वन इसको ओवरलैप करके बैठा हुआ है, और थर्ड वन ऐसे. ठीक है. देन वी हैव
third sp2 hybridized orbital, third sp2 hybridized orbital, 1 2 3 like this. वो किस तरह से हो रहा है, वो इस तरह से हो रहा है 1 2 3 एंड अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो रही है तो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है. ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर छोटा बड़ा हो रहा है बट ये सेम होने चाहिए, ठीक है. वो मेरी स्क्रीन की वजह से मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही, मैं आगे आपको बना के दिखा देती हूँ. तो ये दीज आर द कितने हो गए, 9 हो गए. सिमिलरली इन सेम पैटर्न यू आर गोइंग टू ड्रॉ फॉर द रेस्ट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. दे आर अगेन गोइंग टू ओवरलैप इन द सेम पैटर्न और लास्ट में आपके पास जो रह जाएगा वो इस तरह से यहाँ और यहाँ आपके पास sp2. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. नाउ कम्स हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू कि वी हैव हाउ मैनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वी हैव 3 sp2, ईच कार्बन इज sp2 hybridized. So this is sp2 hybridized orbital of one carbon, this is sp2 hybridized orbital of second carbon, and similarly we have a third carbon, it will be also having the same structure. Similarly the fourth one वो आपके पास ऐसे आएगा. Similarly the fifth one फिर आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा. तो यूँ होंगे, ठीक है. अब आ गया आपके पास, ये तो आपके पास कार्बन है. नाउ कि ओवरलैपिंग हो कैसे रही है. अगर आप देखते हो कि आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है. ये आपके पास कार्बन 6 थे. थोड़ा सा इनकी पोजीशन बिल्कुल बॉन्ड्स इनके इस तरह से होंगे, सही है. अब आ जाएं डबल बॉन्ड्स. अब डबल बॉन्ड नहीं, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं, हम अभी सिंगल बॉन्ड्स की बात करेंगे. इनके साथ कौन अटैच्ड है जनाब, इनके साथ हम यहाँ पर ये मैं बॉन्ड के साथ रेड के साथ जो शो कर रही हूँ, दिस इज़ शोइंग व्हाट, हाइड्रोजन. फाइन. नाउ this carbon is sp2 hybridized, this is suppose कीजिए this is that carbon. Fine. How it is, okay, let me draw it for you, 1 2 3, ठीक है. इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना के आपको दिखा सकती हूँ ताकि आप इसको, ये है, ठीक है. तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड था. तो इट इज़ गोइंग टू ओवरलैप विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन. sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन कौन सा है, वो किस फॉर्म में है, वो कुछ ऐसे है. ओके ओके, सो जी, तो वो आपके पास ये स्ट्रक्चर था, ये था, ये था और ये था. इसके साथ ही हमारे पास दूसरा कार्बन, ये और ये, ठीक है. दूसरा कार्बन इस तरह से ओवरलैप हो रहा है. फिर आपके पास थर्ड कार्बन है. थर्ड कार्बन आपके पास यही सेम स्ट्रक्चर पे आपने इसको ओवरलैपिंग कराते हुए दिखाना है. ये आपका आया फोर्थ कार्बन. फोर्थ कार्बन भी उसी तरह कार्बन के साथ ओवरलैप किया हुआ है. फिर आ रहा है आपके पास जनाब फिफ्थ कार्बन. फिफ्थ कार्बन ने भी इसी तरह से ओवरलैपिंग करनी है. और सिक्स कार्बन आपके पास क्या होगा, सिक्स कार्बन विल ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन. सिक्स कार्बन इज़ गोइंग टू बी ओवरलैप विद लाइक this and one is like with this carbon and this carbon, ठीक है. so this is how our orbital structure you are going to draw. now आपके पास इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है. this is as I said कि ये आपके पास था कार्बन 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 with the कार्बन कार्बन and this कार्बन. so आपने क्या करना है, आपने इसको बताना है कि ये आपका एक कार्बन है, this carbon is going to is overlapping with the sp2 orbital of the second carbon, ठीक है. सिमिलरली आपने यहाँ पर एक कार्बन को उठा लें, किसी एक को एक्सप्लेन कर लें. फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज़ ईच कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द amongst all 6 कार्बन, दिस इज़ वन ऑफ द कार्बन. दिस कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज. दिस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इट कंटेन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द sp2 hybridized orbital of the second carbon. this is the bond, ठीक है. similarly second sp2 orbital overlap with the second जो उसके नेबरिंग दूसरी साइड पे कार्बन लगा हुआ है उसके साथ इसने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है. एंड नाउ व्हाट अबाउट थर्ड वन. थर्ड यहाँ पर कोई देयर इज़ नो कार्बन. सो ये क्या करेगा, दिस इज़ गोइंग टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन. यही आपने सेम फंक्शन हर जगह अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्बन पे आएंगे, इस कार्बन के लिए भी यही होगा कि यू विल से कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, सो दिस साइड इट इज़ बॉन्डेड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ द सेकंड कार्बन. दिस साइड इज़ बॉन्डेड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन. एंड दिस यहाँ आप क्या लगा दोगे, यू विल राइट हाइड्रोजन हेयर,
ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑन ऑल द 4 कॉर्नर्स व्हाट वी ऑल द 6 कॉर्नर्स व्हाट वी आर गोइंग टू अटैच हेयर, यहाँ पे क्या आपके पास जो साइड पे बाहर चीज़ निकली हुई है इसको आपने क्या लगाना है, यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन्स ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आप काउंट करें तो कितने हाइड्रोजन्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 हाइड्रोजन्स, एंड वो सारे के सारे आपके पास इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं। और ऑर्बिटल्स भी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग। नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग, सो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा होगी, पाई होगी? तो द आंसर इज़ जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के बाद जो बॉन्डिंग हो रही होती है, दे फॉर्म एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड। इफ़ यू सी दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पर हर जगह वी हैव सिंगल बॉन्ड, वी डोंट हैव डबल बॉन्ड, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे यकीनन कोई एक ऑर्बिटल रह रहा होगा जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 तो नहीं होती ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो यहाँ कार्बन हर जगह कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन तो यहाँ पे आपके हर जगह 3 बॉन्ड्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन आपके पास 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो होनी कितनी, तो मतलब व्हाट अबाउट द 4th वन, वो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा जनाब ये जो आपके पास pz ऑर्बिटल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डबल बॉन्ड, फाइन। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस चीज़ को शो कर रहा है। नाउ हेयर कम्स the remaining part. What is the remaining part? Remaining part is about pz orbital. ये तो आपने बना दिया, this is the sigma bonding। ये सारी क्या है, ये sigma bonding है जो आप बता के दिखा रहे हो। ये क्या है, ये आपके पास pz ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए हैं। ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी ना, ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव 6 कार्बन्स, एंड हाउ मेनी pz इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन 6 हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे और अगर आप इथीन का स्ट्रक्चर भी अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ pz होता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह रहा होता है, तो कार्बन 6 हैं तो हर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ व्हाट दे विल डू, इन लोगों को कोई डायरेक्ट ओवरलैपिंग के लिए तो मिलेगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, दे जस्ट अरेंज देयर सेल्फ्स इन अ पैरेलल फैशन, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आके ऐसे इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के सामने इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, तो कभी ये एक दूसरे को यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे, जब ये यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, कभी जब ये यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा प्रोसेस जो है ये हर जगह चलता रहेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, ठीक है। सो जो आपके पास एक बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सर्कुलर मोशन नज़र आ रही थी ना, वो सर्कुलर मोशन ड्यू टू दिस pz सिस्टम, दिस पाई सिस्टम, वो इस वजह से नज़र आ रही थी। और ये जो मैंने आपको बताया है ये pz ऑर्बिटल्स हैं आपके जो पैरेलली फैशन पे अरेंज हुए हैं और इस तरह से ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है इसकी समझ में आई होगी कि ये बात क्या है। अगेन दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ pz सिस्टम, पाई बॉन्ड्स। ये जो चीज़ दिखा रहे हैं ना, ये इन्होंने वो शो की है कि यहाँ पे इधर अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ अट्रैक्शन हो रही है, फिर यहाँ देखें इस केस में यहाँ अट्रैक्शन डिफरेंट है। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, दिस इज़ द ओवरऑल अट्रैक्शन। कभी ऊपर से अट्रैक्ट करें, कभी नीचे से अट्रैक्ट करें, तो अगर आप उसको दूसरी साइड से देखोगे तो आपको वो क्या नज़र आएगा, आपको वो सर्कुलर मोशन में इस तरह से अट्रैक्शन जो है वो वीक पाई सिस्टम जो है वो शो करेगा कि वो एक अट्रैक्शन एक दूसरे को कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बन रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। Now this is known as delocalization of pi electron. Like delocalization means that the position of pi electron is not fixed, they just keep on moving here and there. Delocalization means that they don't have any fixed place, so they just move here and there till then ये कोई find नहीं कर लेते जिसके साथ ये bond बना सकें. So ये है delocalization. Now modern अच्छा, this is the MOT structure. MOT structure comes 4 या 5 नंबर का आता है ये, तो आपने ये सारी चीज़ें व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, द स्ट्रक्चर पार्ट, द MOT पार्ट, द हाइब्रिडाइजेशन पार्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स वी हैव, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स वी हैव, ये सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इन डिटेल बताना है एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो. Now modern representation of benzene, as we have discussed it many times, that modern representation is this is the modern representation. We can draw a structure like this and this and this, तीनों तरह से बना सकते हैं, regular hexagon है ये. So that's all about today.
होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट आई हैव डिस्कस, दिस इज़ द जस्ट स्ट्रक्चर, कैक्यूल स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।